अब 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. A TV tower stands vertically on the bank of the canal. This is a TV tower which is standing vertically on the bank of the canal. From the point on the other bank directly, मतलब this is the bank of the canal. जो यहाँ पे जो point है, the angle of elevation of the point of the top of the tower is 60 degrees. तो यहाँ से angle of elevation will be 60 degrees. From another point 20 meter away from this point. So यहाँ से 20 meter away है. Okay, line join this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degrees. So यहाँ पे it is 30 degrees. Find the height. So ये height और the width of the canal हमको ढूंढना पड़ेगा. This has already been given in the question itself. Okay. So now we need to find out. First एक triangle consider करेंगे. ओके, सो नथिंग टू डू विद द लाइन ऑफ साइट, इसको छोड़ दो. ओके, ये जो हाइपोटेन्यूज इसको छोड़ दो. सो विल कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑपोजिट एंड एडजेसेंट. नाउ इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC. नाउ इन दिस tan of 60 degrees is equal to AB upon BC. So tan 60 is √3. √3 is equal to AB upon BC. इसको इस तरफ भेज दो और ये नीचे लिख आओ. So therefore BC is equal to AB upon √3. ठीक है स्टूडेंट्स. So this one we got AB upon √3. Now next और एक ट्राइंगल कंसिडर करेंगे. This triangle. So which is forming a right angle triangle. So in triangle ADB triangle. So tan of 30 degrees is equal to opposite side. Opposite is AB upon BD. ठीक है. Tan 30 will be 1 upon √3 is equal to AB by BD. now इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो. BD is equal to √3 AB. ठीक है स्टूडेंट्स. now what is BD? BD is a full line. अब यहाँ पे full line है तो it is divided into two parts. that is CD plus BC is equal to √3 AB. but we know that is CD कितना है? 20 है. 20 plus BC is AB upon √3 is equal to √3 AB. ठीक है. अब AB को इस तरफ डाल दो. so 20 is equal to √3 AB. इसको इस तरफ डाल दो. पॉजिटिव becomes नेगेटिव. AB upon √3. ठीक है स्टूडेंट्स. अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो which is equal to √3 into √3 is 3. 3AB minus 1 into AB is AB upon √3 into 1 is √3. ठीक है. now so 20 is equal to so 3AB minus AB will be 2AB. 2AB upon √3. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो. ये इस तरफ लेके जाओ. 2 को नीचे लेके आओ. 20 √3 upon 2 is equal to AB. now 2 ones are 2 tens are. therefore AB will be 10 √3 meters. that means we got the height of the tower. अब नेक्स्ट है width of the canal. तो width जो है BC तो यहाँ पे है तो हम ये कंसिडर करेंगे. so BC is equal to AB upon √3. so AB we know it is 10 √3 upon a √3. √3 gets cancelled. we get 10 meters. therefore BC is equal to 10 meters. it's very easy students. ठीक है. चलिए 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. From the top of the 7 meter high building, the angle of elevation of top of the cable tower is 60 degrees. So this is a ground. Students ये ground है. तो यहाँ पे building है which is
7 मीटर हाई बिल्डिंग है. द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर जाना. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द केबल टावर. ये पूरा केबल टावर है फुल कंप्लीटली. ओके, सो केबल टावर इज 60 डिग्रीज. तो ये वाला जो है हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ करेंगे. हॉरिजॉन्टल लेवल, दिस इज 60 डिग्रीज एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्रीज. इसके फुट का जो डिप्रेशन है तो ये होगा 45 डिग्रीज. डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर. एक कंप्लीट टावर का हाइट हमको फाइंड करना पड़ेगा. तो लेट मी नेम दिस एज ए बी सी डी ई. ठीक है, एक कंप्लीट हाइट फाइंड करना पड़ेगा. तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट 45 डिग्रीज का कौन सा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल. एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी और ई ए डी दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल. सो लेट मी कंसिडर दिस इन ट्राइंगल ABC, tan of 45 degrees. Tan of 45 degrees is equal to, इसका opposite by adjacent. AB upon adjacent is BC. ठीक है. Now tan 45 is 1 which is equal to AB का वैल्यू होगा 7 upon BC. Now इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो. So BC is equal to 7 meters. So we got BC as 7 meter. ये BC अगर 7 मीटर है तो obviously AD also 7 meter. AD is equal to 7 meters. ठीक है students. Now let me consider this triangle now. In triangle, okay, ADE. Now tan of 60 degrees is equal to opposite upon adjacent. So opposite is ED upon adjacent is AD. So tan 60 तो हमको पता है which is √3 which is equal to ED upon AD होगा 7. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो. ED is equal to 7 √3 meters. तो ये भी मिल गया. ठीक है स्टूडेंट्स. अभी हाइट ऑफ अ टावर फाइंड करना पड़ेगा हमको. ए बी मिल गया तो द सेम विल बी हियर. ओके, ए बी जितना है सेम सी डी भी होगा विच इज इक्वल टू 7 मीटर्स. देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर that is EC. EC is equal to, EC will be ED plus DC. ED we know it is 7 √3 plus DC कितना है 7 which is equal to, दोनों में 7 कॉमन है, √3 plus 1 meters. Okay, this is the height of the tower students. अभी 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर high lighthouse from the sea level. This is a sea level, okay, and this is 75 meter lighthouse. Okay, now the angle of depression of two ships are 30 degrees and 45 degrees. तो एक शिप होगा 30 degrees and the other one will be 45 degrees. 45 degrees. If one ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse, find the distance between the two ships. Okay, I guess like आप लोगों को confusion होगा कि 30 डिग्रीज यहाँ पे डालना है या 45 वहाँ पे डालना है. आप प्रोट्रैक्टर देख लीजिए. ओके, दिस इज 90 डिग्रीज. ओके, 30 डिग्रीज बहुत कम होगा. देखो इसका डिस्टेंस कैसा है और 45 डिग्रीज ऐसे है. ठीक है, तो आप जो है जो बहुत कम एंगल होगा उसको 30 डिग्रीज मेंशन कीजिए, उसके बाद आप 45 डिग्रीज मेंशन कर लीजिए. बस इतना ही आसान है, कुछ डिफ़िकल्टी नहीं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट वन. नाउ यहाँ पे इसका डिस्टेंस जो है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स. इसका डिस्टेंस हमको फाइंड करना पड़ेगा. इसका डिस्टेंस तो हम नेम करेंगे, दैट इज़ A, B, C एंड D. ठीक है, अभी
let me take this triangle ABC. In triangle ABC, okay, tan of 45 degrees is equal to, tan of 45 will be opposite by adjacent, opposite by adjacent, that is AB upon BC. So tan 45 is 1, which is equal to AB का वैल्यू होगा 75 upon BC. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, so you get BC is equal to 75 meters. तो BC का डिस्टेंस मालूम पड़ेगा, BC का वैल्यू पता चल गया. अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ट्रायंगल. तो ये होगा ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है आपको ना. राइट एंगल ट्रायंगल, देखो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ABD. इन ट्रायंगल ABD, tan of 30 degrees is equal to, इसका opposite side will be AB upon BD. Now tan 30 degrees is 1 upon root 3 is equal to AB 75 upon BD. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, BD is equal to 75 root 3. तो ये मिल गया. लेकिन देखो BD is divided to two parts, that is BC and CD. BC plus CD is equal to 75 root 3. ठीक है. Now अभी BC का तो वैल्यू हमको पता है, that is 75. इसको 75 यहाँ पे डाल लो, plus CD is equal to 75 root 3. Therefore CD is equal to के बाद जो भी उसको पहले डाल लो, 75 root 3 और 75 को इस तरफ लेके आ जाओ, विच विल बी -75. साइन चेंज होगा. ओके, तो यहाँ दोनों में देखो 75 कॉमन है, 75, तो दिस इज रूट 3 यहाँ पे रह गया, -75 1 ज़ा 75, दिस इज मीटर CD. तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज 75 इंटू रूट 3 -1 मीटर. ओके, अगर आपको वैल्यू दिया गया, रूट 3 का वैल्यू दिया गया, प्लीज़ आप उसको सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट कर लीजिए. अगर नहीं दिया गया तो यहीं पे स्टॉप कर लीजिए. थैंक यू स्टूडेंट्स. चलिए स्टूडेंट्स, अभी 14 क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे. 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून. ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल जो है, शी इज स्पॉटिंग अ बलून मूविंग विद द विंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन. So it is moving with the wind at the horizontal height of about 88.2 meter from the ground. So to the ground. इसका height जो है, बलून का height जो है 88.2 मीटर पे है. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any point at any instant is 60 degrees. उसके eyes से जो है angle of elevation will be 60 degrees. After some time angle of elevation क्या हुआ, reduced to 30 degrees हो जाएगा. फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल. तो इसका डिस्टेंस जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा. लेट मी नेम दिस एज A, B, C, D एंड E. ओके, तो यहाँ पे देखो फ्रॉम द ग्राउंड लेवल द हाइट ऑफ द बलून इज 88.2 है. तो सिर्फ हमको DE का ही वैल्यू हमको चाहिए. तो लेट मी सब्ट्रैक्ट 1.2 फ्रॉम 88.2. 88.2 माइनस 1.2 करेंगे तो हमको मिलेगा 87 मीटर हमको मिलेगा. दैट मीन्स DE का वैल्यू 87 मिलेगा. DE इज सेम एज AC. देयरफॉर AC इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू, तो कितना होगा, 87 मीटर आ जाएगा. ओके ओके, फ्रॉम दिस लेवल, फ्रॉम D. अभी नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, ए ट्राइंगल कंसिडर करेंगे. इन ट्राइंगल BDE, BDE और BED भी बोल सकते हैं. तो नाउ tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू, tan ऑफ 30 इज opposite side is DE upon, so adjacent will be BD. ठीक है ना. अभी tan 30 डिग्री will be 1 upon root 3 is equal to DE वैल्यू तो हमको पता है, that is 87 upon BD. now इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो,
we get BD is equal to 87√3 मीटर. नाउ नेक्स्ट दूसरे ट्राइंगल पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, दैट इज ABC. इन ट्राइंगल ABC, सो tan ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल है, tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड इज AC अपॉन BC. tan 60 is √3 which is equal to AC का वैल्यू हमको पता है, दैट इज 87 अपॉन BC. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको BC को उधर भेज दो, √3 को नीचे लेके आ जाओ. BC इज इक्वल टू 87 अपॉन √3. अभी यहाँ पे देखो 87 गेट्स डिविजिबल बाय √3, तो हम रैशनलाइज करेंगे √3 अपॉन √3. सो वी गेट 87√3 अपॉन √3 into √3 is 3. ठीक है, 3 1s are 3 2s are 6, 2 रिमाइंडर है, 2 27, 3 9s are 27. So we get 29√3 मीटर, that is BC. ओके, तो अभी हमको डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, तो इसका डिस्टेंस हमको फाइंड करना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, ए साइड ले लेंगे टू मेक इट क्लियर. ओके, तो B, C एंड D, तो हमको ए पार्ट फाइंड करना पड़ेगा. तो क्या करेंगे, दिस कंप्लीट साइड ले लेंगे और ये पार्ट को कट ऑफ कर लेंगे, तो तब हमको CD मिलेगा. फुल साइड में हम ए पार्ट कट ऑफ करेंगे तो हमको ए पार्ट मिलेगा. दैट मीन्स CD इज इक्वल टू कंप्लीट साइड विल बी BD माइनस BC, विच इज इक्वल टू BD का वैल्यू हो गया 87√3 माइनस, सो BC वैल्यू विल बी 29√3. तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 87 minus 29, you get 58√3 meter. That's it, students. So this is the distance traveled by the balloon during this interval is 58√3 meter. फिफ्टीन क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. A straight highway leads to the foot of the tower. So ये highway है which is leading to the foot of the tower. This is a tower. A man standing on the top of the tower. यहाँ पे he is observing a car at an angle of depression of 30 degrees. तो यहाँ से वो observe कर रहा है at an angle of 30 degrees, which is approaching the foot of the tower. ये जो कार है अप्रोच कर रही है फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degrees. 6 seconds के बाद क्या होगा, so it is approaching to the foot of the tower at an angle of 60 degrees. यहाँ पे हम 60 degrees मार्क कर लेंगे. Find the time taken by the car to reach the foot. टाइम फाइंड करना पड़ेगा. So let me name this as A, B, C, D. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ले लेंगे. इन ट्राइंगल ABC, tan of 60 degree is equal to opposite that is AB upon adjacent is BC. So tan 60 degrees is √3 which is equal to AB upon BC. ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो वी गेट √3 BC इज इक्वल टू AB. ओके, देयरफॉर हम लोग लिख लेंगे AB इज इक्वल टू √3 BC. नेक्स्ट, अब नेक्स्ट ट्राइंगल दैट इज 30 डिग्रीज. 30 डिग्रीज आप इतना ये जो ऑब्ट्यूज एंगल है कंसिडर नहीं करना है. यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल, ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे ही अप्लाई होगा. तो राइट एंगल ट्राइंगल विल बी ABD. इन ट्राइंगल ABD, तो tan ऑफ 30 डिग्रीज ABD, देखो ये वाला, इसमें 30 डिग्रीज, ऑपोजिट साइड इज AB, एडजेसेंट विल बी BD. AB upon BD.
ठीक है. सो tan ऑफ 30 डिग्रीज विल बी 1/√3 इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू होगा √3 BC अपॉन BD. सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. BD इज इक्वल टू √3 इंटू √3 इज 3 BC. ठीक है. अभी BD, नाउ चेक दिस BD तो इट इज डिवाइड टू 2 पार्ट्स, दैट इज BC प्लस CD इज इक्वल टू 3 BC. ओके स्टूडेंट्स, अभी BC को इस तरफ लेके आ जाओ. CD इज इक्वल टू 3 BC माइनस BC, वी गेट 2 BC. ओके, CD is equal to 2 BC. That means BC is equal to 2 को नीचे लेके आओ, so half of CD. तो here BC is half the DC, correct? So distance covered will be half. Therefore BC is, यहाँ पे लिखती हूँ, therefore BC is half the DC, half the DC. Therefore distance covered will also be, distance covered is also half. Okay, so अगर BC half है तो distance also will be half. Therefore time taken by the car is equal to, तो कितना डिस्टेंस स्पीड पे आया वो 6 सेकेंड्स. सो 6/2 विच इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, विच इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स. होप आपको समझ में आ गया होगा. सो BC is equal to half of DC. So BC is half of DC, the distance covered is also half. अगर वो हाफ हो गया तो इसका स्पीड जो है 6 सेकेंड्स का स्पीड था, तो 6/2 दैट इज हाफ ऑफ 6 विल बी 3 सेकेंड्स. चलिए स्टूडेंट, अभी लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर. सो दिस इज स्ट्रेट लाइन. ओके, दिस इज अ टावर. Okay, so we have got 2 points here. Okay, 1 2 जिस पे मेंशन किया गया है, मतलब 2 points at a distance of 4 मीटर. एक होगा 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस, तो एक कंप्लीट होगा 9 मीटर. ओके, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन में ही है. विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री. प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर. तो हमको प्रूव करना पड़ेगा कि ये टावर का जो हाइट है 6 मीटर है करके. सो इफ दिस इज x, सो दिस विल बी 90 माइनस x. ओके, लेट मी नेम दिस एज A B C D. ठीक है स्टूडेंट्स, अभी ये ट्राइंगल कंसिडर करेंगे. इन ट्राइंगल ABC, tan x is equal to opposite side, opposite will be AB upon BC. ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. सो दिस इज tan x. तो इसके पहले ना हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे वैल्यूज. AB अपॉन BC इज 4. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. AB इज इक्वल टू 4 इंटू tan x, 4 इंटू tan x. ओके, AB का वैल्यू मिल गया. देन नेक्स्ट इन ट्राइंगल, सो वन मोर ट्राइंगल विल कंसिडर, दैट इज ABD. tan of complementary angle, that is 90 minus x is equal to, इसका ऑपोजिट साइड विल बी AB अपॉन BD. So tan of 90 minus x will be cot x is equal to AB अपॉन BD का वैल्यू होगा 9 मीटर्स. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. AB is equal to 9 into cot x. 9 into cot x. So we have got equation 1 and equation 2.
So let us multiply these two equations. Multiply equation 1 and 2. दोनों equation multiply कर लेंगे. We get here AB into AB is equal to 4 tan x into 9 cot x is equal to, that is AB into AB will be AB square is equal to 4 tan x into 9 cot. So cot is reciprocal of tan. Okay, tan x मतलब is equal to 1 upon cot x, 1 upon cot x, or else we just say, so cot x कैसा लिख सकते हैं? Cot x will be 1 upon tan x because it is reciprocal. Reciprocal होगा, tan का reciprocal होगा cot. So into 1 upon tan x, 1 upon tan x. So tan x gets cancelled. You get here 4 into 9, 36. So AB square is equal to 36. So AB is equal to plus or minus 36. Oh, plus or minus 6 we get. AB is equal to plus or minus 6. अभी यहाँ पे देखो, height will never be negative, so it is always positive. Therefore, height of a tower is height of the tower is equal to 6 meter. So we have proved it. Understood, students?